our next topic is sources of food. So अभी तक हमने जैसे कि जाना कि दो टॉपिक जाना, एक वैरायटी ऑफ फूड्स एंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड एंड फूड एंड इट्स इम्पोर्टेंट, राइट? So our next topic is sources of food. Sources of food. So we have two major sources of food, right? The two sources of food are, first one is plants and the second one is animal. Plant are called always producer. Why? Plant sources of, before that let's know about the sources of food, definitions of sources of food. So it's very easy to know about the why plant is called producer, right? So the place or living organism from which we obtain food. So कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसा एनिमल्स जहां से हमें फूड मिले उसे कहा जाता है सोर्सेस ऑफ फूड. जैसे कि प्लांट्स. So plants make their own food with the help of sunlight. So this is called producer. जैसे कि आप लोग भी जानते हैं प्लांट्स को. प्लांट्स कभी भी अपना खाना खुद बनाते हैं with the help of sunlight, इसलिए प्लांट्स को कहा जाता है प्रोड्यूसर. So plant is also called producer and plant is also called autotrophs. Autotrophs, अगर if I break the meaning, if I break the auto and troph, so auto means self and troph means organisms who eat food, like animals. So you know very well, animals never make their own food. He is always dependent on other organisms, right? So that's why animals called consumer. He always consume food from other living organisms. So that's why animals is also called heterotrophs. If I break this word, so what is the meaning of heterotroph? Hetero means different and troph, that means organisms who eat food. So let's know as a plant as a source of food. Different parts of plant that can be eaten are, which parts we are eating of the plants? First, root like radish, carrot, trunk, that is called root of the plant. And what we are eating as a stem? Potato, sugarcane and etc. Like flower, rose, cauliflower and etc. Fruits like apple, mango, banana and etc. Leaves, spinach, cabbage and etc. Seeds, wheat, rice and etc. So यहाँ पे हमने देखा कि एज अ प्लांट हमारा सोर्स ऑफ फूड कैसे हो सकता है. जैसे प्लांट्स है तो प्लांट्स के हम बहुत अलग अलग हिस्से हम खाते हैं. जैसे कि रूट के रूप में कोई रेडिश है, कैरेट है, ट्रम्प है, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं. वैसे स्टेम के रूप में पोटैटो, शुगर केन और भी है. फ्लावर के रूप में रोज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया. एंड फ्रूट के रूप में एप्पल, मैंगो, बनाना एंड एक्सेट्रा. लीव्स के रूप में स्पिनच खाते हैं हम, पालक जैसे आप जानते हैं, और कैबेज, कॉलीफ्लावर, सॉरी कैबेज डेट मीन्स की पत्ता गोभी. सीड्स, व्हीट एंड राइस. सीड्स के रूप में जैसे कि आप देखते हो हम खेत में धान, गेहूं छिड़कते हैं, तो ये हमें कहां से मिलता है? सीड्स के रूप से. डेट इज कॉल्ड व्हीट एंड राइस. सो नोट इट डाउन. So the next topic is animals as a sources of food. How animals are as a sources of food? We get meat, chicken, milk, honey and eggs. That's why animals are also called as sources of food. We get meat, chicken, egg, milk, and this milk we get कर्ड, घी, बटर, चीज एंड etc. जैसे कि आपको पता है कि हम मिल्क में से भी हम दही बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, बटर मिल्क बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, राइट? वैसे ही हनी होता क्या है और मिलता कहाँ से? हनी obtained from honeybees when eat nectar from the flowers of plants. जैसे कि हनी अब प्रोड्यूस होता कैसे है, राइट? तो हनी जो है वो प्रोड्यूस होता है हनीबीज से, जो कि क्या करते हैं? जैसे देखिए नेक्टर, यहाँ पे क्या बोला है? obtained from honeybees when eat nectar from the flowers of plant. जब
कोई भी प्लांट का जो फ्लावर्स है उसे खाता है, जैसे कि नेक्टर। सो नेक्टर एक क्या होता है, स्वीट जूस होता है। नेक्टर इज अ स्वीट जूस दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट, जो कि कहां से बनता है, प्लांट के फ्लावर से प्रोड्यूस होता है। एंड हनी बीज शक द नेक्टर इनसाइड देयर बॉडी टू मेक हनी। और हनी क्या करता है, उस नेक्टर को शक करता है, अपने अंदर लेता है और उससे हनी बनाता है। एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन एड वन मोर टॉपिक दैट इज स्प्राउटेड सीड्स एंड स्प्राउट्स। व्हाट इज स्प्राउटेड सीड्स एंड व्हाट इज स्प्राउट? सो लेट्स वी टेक एन एग्जांपल। टेक अ मूंग और gram and soak it in water in a dish for a particular utensil for a day. आप एक काम कीजिए, आप ग्राम ले लीजिए या हरा मूंग या चना ले लीजिए और उसको कुछ दिनों के लिए पानी में किसी भी बर्तन में भिगो के आप 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे वन डे के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे रिमूव द एक्सेस वाटर। और नेक्स्ट डे क्या करना है कि जो भी पानी है उसमें से हमें चने को निकाल लेना है, जितना भी एक्स्ट्रा पानी उसको निकाल दीजिए। प्लेस द सीड्स इन अ वेट क्लॉथ। एक गीला कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसमें आप ग्राम को डालिए और उसको बांध करके सोक देम प्रॉपर्ली 2 to 3 days विथ वाटर। और गीले कपड़े को वैसे ही आप बांध के रख दीजिए 2 से 3 दिन के लिए। सो 2 से 3 दिन बाद आप जब देखेंगे, आफ्टर 2 to 3 days, you will observe a white thread like structure comes out from the moong or gram seeds. So आप देखेंगे कि जो मूंग होगा और जो चना होगा उसमें से व्हाइट कलर का एक धागे जैसा निकला हुआ दिखेगा, उसको बोला जाता है स्प्राउट। एंड सो सीड्स आर कॉल्ड स्प्राउटेड। उस सीड्स को बोला जाता है स्प्राउटेड सीड्स। सो नोट इट डाउन प्रॉपरली।